Yes, in covalent bonds, sometimes we see ionic characters also when it happens when there is difference in electronegativity. ठीक है, दो चीजों में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो क्या होगा कि कुछ कैरेक्टर जो पार्शियल चार्जेस आ जाएंगे, लाइक सपोज दिस इज हाइड्रोजन एंड अनदर वन इज क्लोरीन। तो इन दोनों में ये एक दूसरे को जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लाइक राइट नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ HF, hydrogen fluoride, on the screen. So there will be partial negative charge on the more electronegative element and partial positive charge on the electropositive elements. So in this way, two poles will develop, and because of this, when the electrons will move, that is called as dipole moment. So when two poles will make, that compound is known as polar molecule. Clear? And we can measure this polarity, means how polar the compound is, that is called as dipole moment. The unit of dipole moment is Debye, that is DEBEY. Clear? उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि द polarity of the compound, that whether the compound is polar or not, it not only depends that one of the atom is electronegative or not, it depends on certain other factors also. Like the first factor is shape. If all the atoms are in one symmetry, so इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के बावजूद भी क्या हो सकता है, हमारा कंपाउंड नॉन पोलर हो सकता है। लाइक CCl4 में हमने देखा, NBF3 में हमने देखा, दीज आर AB3 एंड AB4 टाइप कंपाउंड्स। बट स्टिल यहाँ पर क्या था, एक से ज्यादा एटम्स थे हमारे, पॉली एटमिक है ये कंपाउंड्स। और यहाँ पर फ्लोरीन जो है दैट इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव BF3 में बोरोन के कंपैरेटिवली, एंड इन CCl4 chlorine is very electronegative as compared to carbon, but still these compounds are non-polar. Why? Because polarity is a vector quantity also. The dipole moment is a vector quantity also. It depends on directions also. अगर डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उनके मैग्नीट्यूड को, और अगर डायरेक्शन सेम होती हैं तो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो BF3 में जब हमने स्ट्रक्चर बनाकर देखा तो हमने देखा कि जितनी भी पोलैरिटीज थी वो सब अलग अलग डायरेक्शंस में थी, तो आपस में वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो गई, कैंसिल आउट हो गई, जिसकी वजह से ओवरऑल नेट डायपोल मूवमेंट जो है कंपाउंड की वो जीरो हो गई, जिसकी वजह से कंपाउंड हमारा नॉन पोलर बन गया। So it means we are having two type of covalent bond, that is non-polar and polar. Agar one of the atom is more electronegative, then compound may be polar. But then we will first see the shape of the compound, कि shape कैसी है, structure कैसा है उसका, then we will see whether the compound is polar or not. Like these two compounds, ये दोनों का linear structure है, chlorine is more electronegative than hydrogen, so it will attract the electrons more towards itself. So there will be partial negative charge on chlorine and partial positive charge on hydrogen. So the compound will become polar and there will be some net dipole moment of this compound. There is only one bond in this compound, and that bond is polar. So compound is also polar. In OH also, oxygen is more electronegative than hydrogen, so it will attract the electron towards itself. So there will be partial negative charge on oxygen and partial positive charge on hydrogen. So this compound is also polar. तो अगर स्ट्रक्चर हमारी लीनियर है, स्ट्रेट एक ही सिमेट्री में है, तब तो कंपाउंड पोलर होगा ही होगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ स्ट्रक्चर हमारी लीनियर नहीं होती, जहाँ स्ट्रक्चर हमारी टेट्राहेड्रल है, ट्रायंगुलर प्लेनर है, वहां पर फिर हमें ये देखना पड़ता है कि कौन कौन सी चीजें कौन कौन से डायरेक्शन में है। क्लियर? अगर हमारी नेट डायपोल मोमेंट जीरो है तो कंपाउंड नॉन पोलर होगा, और अगर हमारी नेट डायपोल मूवमेंट कुछ है तो कंपाउंड हमारा क्या होगा, पोलर होगा। लाइक ये मैंने yesterday also I have explained you, this is the structure of carbon dioxide and this is the structure of water. See here also, this is also AB2 type and this is also AB2 type, but this is here also we can see the electricity difference, like oxygen is more electronegative than carbon, and here also we see electronegativity difference, oxygen is more electronegative than hydrogen. But still because of shape, this is polar and this is non-polar, because here both the dipole moments, like this is the dipole moment and this is the dipole moment, both are in different directions, so these both will get subtracted out with each other and the net dipole moment of compound will become zero. So that is why it is non-polar molecule. But in the case of water,
oxygen is here, so both the dipole moments are towards the oxygen, means oxygen will attract the electron towards itself, and there is lone pair also on oxygen. ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी होते हैं. जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे आप देखेंगे ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, सो देयर विल बी 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन, यानी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर. तो जो लोन पेयर होता है उसकी तरफ भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन रहता है. तो यहाँ है इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, यहाँ है, और लोन पेयर की तरफ है. ऑल द डायरेक्शंस आर सेम. तो सारे जो नेट डायपोल, सारे जो डायपोल मोमेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, और ऐड अप होने के बाद द वैल्यू विल कम 1.85 dB. तो इसकी वैल्यू 1.85 dB है, सो दिस इज पोलर. और इसकी डायपोल मोमेंट जो नेट है वो 0 है, दैट इज व्हाई इट इज नॉन पोलर. तो क्या होता है हमारा कि स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है ये डिसाइड करने में कि कोई कंपाउंड कितना ज्यादा पोलर है. एंड रिमेंबर, पोलैरिटी से हमें क्या पता चलने वाला है कि कंपाउंड के अंदर कितने आयनिक कैरेक्टर्स हैं. मींस कोवेलेंट बॉन्ड होने के बावजूद, कोवेलेंट कैरेक्टर्स होने के बावजूद उसके अंदर आपको कुछ आयनिक कैरेक्टर्स भी नजर आएंगे. दैट इज बिकॉज ऑफ पार्शियल चार्जेस. कितने आयनिक कैरेक्टर्स होंगे ये डिपेंड करता है कंपाउंड कितना पोलर है, यानी उसकी पोलैरिटी कितनी है. इसीलिए हमें पोलैरिटी को मेजर करने की जरूरत पड़ती है. पोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय polarity we can measure by dipole moment, which is represented by mu. Mu is equivalent to q into d. Q stands for charge and d stands for distance. जो bond length होगी वही distance होगा हमारा यहाँ पर. तो उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास dipole moment आ जाता है. बेसिकली जब आपको एग्जाम में अरेंज करने के लिए आता है कि अगर आपको कोई भी ऐसे 5 to 6 ऐसे कंपाउंड्स दे दिए जो सब आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और आपको बोला कि इनको इनके आयनिक कैरेक्टर के बेस पर अरेंज करो. तो पहला कंफ्यूजन तो यही हो जाता है कि भाई सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं तो इसको आयनिक के बेस पर कैसे अरेंज करें. तो आपको देख लेना है कि अगर वो पोलर है तो ऑब्वियसली उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर्स होंगे ही होंगे. ठीक है, अब आपको उसे अरेंज करना है. तो अरेंज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर्स कितने हैं. तो दो चीजें आप देखोगे. सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि जो कंपाउंड है वो पोलर है कि नहीं. वो तो हमने देख लिया, चलो. उसके बाद अगर पोलर है तो जो जिसके साथ वो कंपाउंड बना रहा है, जिस एटम के साथ, वो कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है. लाइक अगर ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन, और एक जो है दूसरा वाला वो फ्लोरीन के साथ बना रहा है, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन. तो फ्लोरीन वाले कंपाउंड का डायपोल मूवमेंट ज्यादा होने के चांसेस हैं. बट स्टिल हमें और चीजों पर भी ध्यान देना है. हमें उसकी शेप पर भी ध्यान देना है कि उसके जो नेट डायपोल मूवमेंट्स हैं वो कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे हैं. हमें साइज पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जितना ज्यादा एटम का साइज होता है उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाती है. एक छोटा सा बॉल है और एक बड़ा सा बॉल है, आप उन दोनों को एक दूसरे के बीच में उन दोनों को जोड़ रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, एक छोटे बॉल को छोटे बॉल से और एक छोटे बॉल को बड़े बॉल से. तो क्या होगा, जो बड़ा वाला बॉल है जो उसको आप छोटे बॉल से ज्वाइन करने की कोशिश करो उसमें गैप ज्यादा आएगा, क्योंकि बड़े वाले बॉल का साइज ज्यादा है तो वो ज्यादा स्पेस लेगा. तो जब किसी भी एटम का साइज ज्यादा होता है तो क्या होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या होगा, डायपोल मूवमेंट बढ़ जाएगी, और डायपोल मूवमेंट बढ़ गई तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, सॉरी आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा. इसी तरीके से चार्ज, अगर चार्ज ज्यादा है एटम के ऊपर, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो भी क्या होगा, आपका डायपोल मूवमेंट बढ़ जाएगा, और डायपोल मूवमेंट बढ़ने की वजह से क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर्स भी बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर, इन चीजों को देखकर आपको ये डिसाइड करना होता है कि कोई कंपाउंड जो है उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, आयनिक कैरेक्टर्स कितने हैं उसके अंदर. उसके बाद मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड कराया था. ये सब हमें देख लेना है सिमेट्रिकल है या नहीं. अगर एक ही सिमेट्री में है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के बावजूद कंपाउंड जो है हमारा नॉन पोलर होता है, क्योंकि उसके वो जो है पोलैरिटीज, जो डायपोल मूवमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं. देखो जैसे ये है, अगर लीनियर है उसकी स्ट्रक्चर, बट यहाँ तो मैंने लीनियर टेट्राहेड्रल लिखा है. अगर लीनियर टेट्राहेड्रल है तो क्या होगा, अगर ट्रायगोनल स्ट्रक्चर है तब क्या होगा, ये हमें शेप बना बना कर ही पता चलता है. शेप्स कैसे बनानी है, दिस यू विल कम टू नो व्हेन यू विल डू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेस्पर थ्योरी. क्लियर. अब यहाँ पर मैंने आपको कौन सा कंपाउंड बताया था, ये वाला. दिस इज BF3, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BF3. ये बीच में बोरोन है एंड दीज ऑल थ्री आर फ्लोरीन्स. तो ये सब क्या होगा, सबकी डायपोल मूवमेंट कैंसिल आउट हो जाएगी एंड नेट डायपोल मूवमेंट कंपाउंड की 0 हो गई. तो BF3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के बावजूद भी BF3 इज अ नॉन पोलर कंपाउंड. देन
दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज अ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया NH3। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया, उसके बेस पर ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। एंड हियर वी आर हैविंग वन लोन पेयर आल्सो, तो इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन यहाँ रहेगा। So here also we can see dipole moment, here, here, here. All these dipole moments will get adds up and इसकी कुछ dipole moment हो जाएगी जो अच्छी खासी होगी, काफी ज्यादा होगी वो dipole moment। और वो dipole moment 1.47 dB होती है स्टूडेंट्स। वैसे तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, बट कुछ स्पेशल कंपाउंड जैसे आई एम टेलिंग यू दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर? देख रहे हो सारे डायपोल मूवमेंट्स का डायरेक्शन जो है वो एक ही तरफ है, here, 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 तो ये सब क्या होंगे, एड अप हो जाएंगे। ठीक, उसके अगेंस्ट अगर हम बात करें NF3 की, तो NF3 का भी स्ट्रक्चर सेम ऐसा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बट हियर द डायरेक्शंस आर अपोजिट बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। क्लियर? तो ये इधर 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 आएंगी सारे डायपोल मूवमेंट जो, और ये ऊपर जा रही है, तो सारे डायपोल मूवमेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि नेट डायपोल मूवमेंट जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जीरो तो नहीं होगी बट काफी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से दिस कंपाउंड इज लेस polar than NH3। so till here we have done yesterday, कल हम कर चुके हैं, मैं आपको बता चुकी थी ये। तो कुछ चीजें रह गई थी बतानी, वो क्या है? द फर्स्ट थिंग इज इम्पोर्टेंस ऑफ डायपोल मूवमेंट। कि डायपोल मूवमेंट हमें पता करने की जरूरत ही क्या है, हम क्यों इतना परेशान हो और इतनी सारी चीजों के बारे में जाने। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट बिकॉज ऑफ डायपोल मूवमेंट we come to know about polar and non polar molecules। हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमारा जो है वो पोलर है और कौन सा कंपाउंड हमारा नॉन पोलर है। सेकेंड इंपॉर्टेंस इज that with the help of dipole moment we can calculate the degree of polarity, means how much polar is the compound, and when we will come to know how much polar is the compound, or when we will come to know about the degree of the polarity, we can conclude this also how much ionic character the compound is having। ठीक है, जब हमें डिग्री पता चलेगी उसकी, उसका ये पता चलेगा कि उसके अंदर कितना डायपोल मूवमेंट है, उसकी पोलैरिटी कितनी है, तभी हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड होने के बावजूद उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर्स कितने हैं। ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू कंपाउंड्स इज 1.7 then the compound will be 50% covalent character and 50% ionic character। If electronegativity difference is more than 1.7 then the compound is predominantly ionic, मतलब ionic characters ज़्यादा होंगे उसके। and if electronegativity difference is less than 1.7 then it is predominantly covalent। and percentage of ionic character निकलेगा कैसे ये? The percentage of ionic character is equivalent to observed dipole movement upon calculated dipole movement into 0। calculated dipole movement मतलब कैसे calculate करते हैं हम? Q into D यानी charge into distance से। observed dipole movement तो आपको given होगा question में into 100। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन CBSE के सिलेबस में नहीं है, आपके कॉम्पिटिशन्स वगैरह में हो सकता है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको आए, तो मैंने आपको फॉर्मूला इसलिए बता दिया है, बट CBSE में नहीं आते ये क्वेश्चंस। ठीक है, उसके अलावा विद द हेल्प ऑफ डायपोल मूवमेंट वी कैन गिव द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हम जो है शेप पता कर सकते हैं कंपाउंड की क्या है। लाइक आपके पास AB2 टाइप का, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आपके पास वाटर भी है, आपको पता है दोनों AB2 टाइप के हैं, तो आप कहोगे कि दोनों का स्ट्रक्चर लीनियर होगा। बट जब आप उनका डायपोल मूवमेंट देखोगे आप कहोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मूवमेंट 0 है, तो फॉर श्योर इसका स्ट्रक्चर लीनियर ही होगा। इट मीन्स सारे एटम्स एक ही सिमेट्री में होंगे, तभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के बावजूद इसकी पोलैरिटी 0 आई। बट जब आप वाटर को देखोगे तो वाटर का डायपोल मूवमेंट मिलेगा आपको, तब आप कंक्लूड कर पाओगे, तब आप डिसाइड कर पाओगे ये चीज कि वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं हो सकता। अगर लीनियर होता तो इसकी डायपोल मूवमेंट भी 0 होती। इट मीन्स वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है, इसका स्ट्रक्चर कुछ और है। अब वो कुछ और क्या है ये आप वेस्पर थ्योरी में समझ जाओगे कैसे निकालना है। बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू कि डायपोल मूवमेंट की हेल्प से आप शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसाइड कर सकते हो, पता कर सकते हो। उसके अलावा ये चीज तो है ही कि डायपोल मूवमेंट गिव अस द आयनिक कैरेक्टर्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है ये हमें डायपोल मूवमेंट बताता है। सो दीज आर सम ऑफ द importance of
important points of dipole moment, that we can distinguish between polar and non-polar molecules. We can calculate the degree of polarity in a molecule. We can come to know about the shape of the molecules. We can calculate the ionic characters in a molecule. And except this, there are some other characters also. जब आप लोग organic पढ़ेंगे, जब high level पे पहुंच जाएंगे 11th के लास्ट तक, तब आप देखेंगे कुछ सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, तो उनके बारे में भी डायपोल मूवमेंट से हमें पता चल जाता है. ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स होते हैं, इनके बारे में हमें डायपोल मूवमेंट से पता चल जाता है. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच टेल्स अस अबाउट द these are certain things which we can calculate with the help of polarity or with the help of dipole moment. So this is all about dipole moment. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप और जानेंगे. अब जो है हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फजान. अब वो बैठे हुए थे एक दिन, उन्होंने कहा भाई नहीं ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स तो है ही और आयनिक कैरेक्टर्स भी. मतलब कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो कंपाउंड है उनके तो मजे आ गए, दोनों दोनों कैरेक्टर्स लेके बैठे हुए. तो मुझे भी आयनिक कैरेक्टर्स के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे उनके लिए कुछ कदम उठाना चाहिए, है ना. तो उन्होंने भी उनके लिए कदम उठाया. उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स में ही आयनिक कैरेक्टर्स होते हैं, बट ऑन द अदर हैंड आयनिक बॉन्ड ऑल्सो हैव कोवेलेंट कैरेक्टर्स. जो हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं, जो कंपाउंड जो हमारे आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, उनके अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर्स होते हैं. अब ये उन्होंने क्यों बोल दिया? कोवेलेंट बॉन्ड में तो हम समझ गए कि आयनिक कैरेक्टर्स कैसे आ गए, बिकॉज पार्शियल चार्जेस आ गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से. अब आप देखो ये वाला ना डायग्राम, आई थिंक मुझे आपको पिछले वाले स्लाइड में ही दिखाना चाहिए था, वहां आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. यस, ये वाला डायग्राम देखो, सी दिस डायग्राम एंड इमेजिन करो ये जो मैंने ऊपर पोलर वोलर लिखा हुआ है ना, इसको जरा भूल जाओ थोड़ा सा. नाउ थिंक अबाउट दिस एंड थिंक अबाउट दिस. ठीक है, ये दो एटम है, ये एक हमारा कैटायन है इसमें से और एक हमारा एनायन है. कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग NaCl. ठीक है, NaCl सबको पता है कि आयनिक बॉन्ड बनाता है. उसमें कैटायन कौन है हमारा? कैटायन कौन है स्टूडेंट्स? सोडियम, Na. एंड एनायन कौन है? क्लोरीन, Cl. Na have positive charge and chlorine have negative charge. So कैटायन का साइज हमेशा क्या होता है? एनायन से छोटा होता है. पढ़ा था आपने, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, है ना. तो हो सकता है उनका एक शेल रिमूव भी हो जाता हो और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं. और भी कोई रीजन बताया था मैंने? अट्रैक्शन बढ़ जाता है ना. यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं. दिस इज एनायन एंड दिस इज कैटायन. जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस H and F, इसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो. दिस इज Na एंड दिस इज Cl. अब क्या होगा नॉर्मल केस में? जब ये बॉन्ड बनेगा तो ये जो क्लोरीन है, जिससे ये जो एनायन है जिसके ऊपर यहाँ पर सारा नेगेटिव 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 चार्ज है, और ये कैटायन है, इसके पास क्या है? बीच में सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो बाहर में इसके जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज इसका स्प्रेड हुआ हुआ है, फैला हुआ है, उसको पोलराइज कर देगा. व्हाट इट मीन्स पोलराइज? उसे अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा. दिस पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो जब अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा तो उससे क्या होगा? उसका जो स्ट्रक्चर है, इस एनायन का जो स्ट्रक्चर है, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यानी थोड़ा सा वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ चला जाएगा. सो द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द नेगेटिव आयन बाय द पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन. सो दिस विल गेट पोलराइज्ड बाय दिस. ये जो एनायन है ये इस कैटायन की वजह से पोलराइज हो जाएगा, यानी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. थोड़ा सा है तो ये दूर दूर क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, लेकिन ये इसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया, थोड़ा सा झुक गया, इसके साथ थोड़ा सा मिल सा गया. और ये जो मिलना है, ये जो शेयरिंग है, ये जो ज्वाइनिंग है, ये किस में होती है? ये तो कोवेलेंट बॉन्ड्स में होती है, आयनिक में तो होती नहीं. आयनिक में तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, दोनों के बीच में गैप भी होता है. इस तरीके से शेयर होकर जुड़े हुए नहीं होते आपस में. लेकिन क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ये जो एनायन के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज फैला हुआ था, इसे इस पॉजिटिव चार्ज ने अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लिया, तो इसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर स्फेरिकल होने के बजाय थोड़ी सी इस तरीके से डिस्टॉर्टेड शेप में आ गई और ये थोड़ा सा जाकर कैटायन से मिल गया. एंड
this is because of this it possess the covalent characters. Students, ये बात समझ में आई? This polarization, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन. मतलब जो केटायन है वो जो एनायन है दिस विल गेट पोलराइज्ड बाय केटायन. पोलराइज कर लिया उसने, उसे डिस्टॉर्ट कर दिया उसके स्ट्रक्चर को. वो जो आराम से बैठा हुआ था, अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लेके बैठे हुए थे, तो पॉजिटिव चार्ज ने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, उसको पोलराइज कर लिया. इसकी वजह से उन दोनों के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर्स आ गए. Obviously, if polarization is more, larger will be the covalent characters of the bond. जितना polarization ज्यादा होगा, कैटायन जितना ज्यादा polarize कर पाएगा, किसको किसको? Students, are you listening? Anion. Yes, anion को. Anion. Yes, exactly. जितना ज्यादा polarize करेगा उतना ज्यादा ionic covalent characters इसमें मिलेंगे. So what we have studied कि in covalent bonds there are ionic characters due to polarity difference, due to electronegativity difference, I must say. Due to electronegativity difference there will be polarity, there will be two poles will develop in that, and polarity will develop. This polarity we can measure with the help of dipole moment. More the dipole moment, more will be the ionic characters in the covalent bond. Now इसका उल्टा क्या है? In ionic compounds, when the anion will get polarized by the cation, so they will get distorted towards the cation, and due to this they will get polarized and will possess some covalent characters also. More will be the polarization, more will be the covalent characters. अब हम देखते हैं, अब हम जानते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको जो है चेंज कर पाएंगे, यानी जिस पर हमारी जो पोलैरिटी है वो डिपेंड करेगी. ठीक है ना? ये तो अब हमने देख लिया कि है क्या, क्यों आ रहा है कैरेक्टर. अब ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन अब बात ये आती है कि जो हमारा ये सॉरी, ये डायपोल मूवमेंट आ रहा है, इसे भूल जाओ. डायपोल मूवमेंट, कोवेलेंट कैरेक्टर, तुम अपने घर जाओ. नाउ दिस इज द टर्न ऑफ फिजान रूल, है ना? अब फिजान ने क्या बोला? द स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन. कैटायन समझ रहे हो? जो छोटा वाला था, जो यहाँ पर पावरफुल है, जिसने पोलराइज्ड किया है, उसकी बात कर रहे हैं. कैट, बिल्ली जिसने पंजा मारा है, उससे याद रखो कैटायन. स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, जितना साइज कैटायन का छोटा होगा, मुझे बताओ स्टूडेंट्स, वो उतना ज्यादा पोलराइज कर पाएगा एनायन को या उतना कम पोलराइज कर पाएगा? If the size of the cation is small, तो क्या होगा? I am saying that polarization power will be more. जितना साइज छोटा होगा ना कैटायन का, वो एनायन को उतना पोलराइज कर पाएगा अपनी तरफ. बता सकते हो क्यों? Because small cations have high electron density. उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, वो हाई होती है. ठीक है? And therefore they tend to distort or polarize the electron cloud of anion to greater extent. इलेक्ट्रॉन छोटी जगह पर है, छोटी जगह पर है ना, सारा जो चार्ज है उसका, वो सारा वो एक छोटी सी जगह पे समाया हुआ है. अगर वही चार्ज मान लो अगर बड़ा होता, स्ट्रक्चर साइज बड़ा होता कैटायन का, तो वो सारा का सारा चार्ज क्या होता? स्प्रेड हो जाता, फैल जाता, चारों तरफ फैल जाता. तो अगर वो फैल जाता तो उसकी पावर जो है थोड़ी कम हो जाती. लेकिन अब वो जो चार्ज है वो एक छोटी सी जगह पर है, तो डेंसिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई. जब कोई चीज का साइज बढ़ जाता है और वहां पर चीजें उतनी रहती हैं, मॉलिक्यूल्स उतने ही रहते हैं, तो क्या होता है? डेंसिटी कम हो जाती है ना. बट जब साइज कम हो गया, जैसे मान लो आप एक छोटा सा रूम है एंड देयर आर 10 पीपल इन दैट रूम, और एक बहुत बड़ा सा रूम है, देयर आर आल्सो 10 पीपल इन दैट रूम, तो डेंसिटी कहाँ ज्यादा दिखाई देगी आपको? जब आप देखेंगे दोनों रूम्स में, तो डेंसिटी आपको कहाँ दिखाई देगी ज्यादा? छोटे वाले रूम में, है ना? क्योंकि स्पेस जो है वो कम है. जब वहां पर 10 लोग होंगे तो उनके बीच में स्पेस कम होगा. जब स्पेस कम होगा तो जो लोग हैं वो आपस में पास पास जुड़े हुए रहेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? डेंसर हो जाएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी उनकी, है ना? तो इसी तरीके से जितना साइज कैटायन का छोटा होता है, उतना उसके पास जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है, और वो उतना ज्यादा एनायन को पोलराइज कर पाता है. और जितना ज्यादा वो एनायन को पोलराइज कर पाएगा, उतना ज्यादा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स होंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको एग्जाम में अरेंज करने के लिए आते हैं. लाइक एग्जांपल मैं आपको अभी यहाँ पर देती हूँ कि सपोज वी आर हैविंग लिथियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड. आपको एक क्वेश्चन आ गया कि अरेंज देम
इन द ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर्स। अब सबसे पहले तो हमने देखा लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। मैम को पेपर बनाना नहीं आता, कोवेलेंट बॉन्ड तो होता ही नहीं है इसके अंदर, तो आयनिक बॉन्ड होता है। अब आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ रही है, पता नहीं कुछ भी पूछ लेती है ना। सो कोई बात नहीं। तो आप हमें क्या याद रखना है, हमें फिजान का रूल याद कर लेना है यहाँ पे कि यस फिजान ने बोला था कि देयर कैन बी कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन आयनिक बॉन्ड्स आल्सो, है ना। तो यहाँ पर भी उसी की वजह से आयनिक कैरेक्टर्स होंगे, उस पोलराइजेशन की वजह से। अब हमें देखना है कि पोलराइजेशन किसमें ज्यादा है। अगर हम देखें तो क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, आई एम टॉकिंग अबाउट लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। क्लोराइड यानी जो एनायंस है वो तो तीनों में सेम है, तो उसके बेस पर तो कुछ हो नहीं सकता। बट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, दीज आर द कैटायंस, ये तीनों में अलग अलग है और हमें पता है कि इनके साइज भी अलग अलग हैं। हमें पता है कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम एक ही ग्रुप में होते हैं एंड दैट इज ग्रुप नंबर 1। और जब हम ग्रुप में किसी भी अलोंग अ पीरियड जब हम ऊपर से टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, भूल गई।